press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. Every week we think and plan. No more TV news bashing. This episode we'll say something nice, talk about good reporting happening across channels, and fill you guys with some hope in these sad old corona times. And then Arnab happens. Migrant crisis. Maharashtra migrant distress. They tried this migrant angle in Delhi first. They got exposed. Now they are back. And then they say people appeal to migrants. Migrants have nowhere to work. This was not a migrant group. I mean, he leaves us with no choice. This man is sitting in Mumbai, and when one of the biggest stories of corona breaks in his city, what does he do? He doesn't step out of his studio to find the truth. He doesn't inform his viewers what happened. Instead, he peddles conspiracy theories. That what happened in Mumbai's Bandra last evening was part of a gigantic pre-planned conspiracy. They were not migrant workers there. They were all actors who were brought in. Here's what happened. Around 2,000 migrant workers gathered at Bandra station on April 14th, demanding a way back home. Most of these migrants were from UP, Bihar and West Bengal. This happened a few hours after PM Modi announced that the national lockdown would extend till May 3rd. News anchors, of course, smelt a conspiracy in this migrant gathering. Someone is engineering this. In a city that is already groaning under the weight of positive coronavirus numbers, who engineered this riot-like situation? Who engineered it? And I'm saying this with full responsibility, Shazia Ilmi, this was engineered. This was not spontaneous. Who engineered this mob? Who? It's not like I'm a journalist who can find the truth. I mean, why bother with actual reporting when I can just sit at home, stare at the screen, fake seriousness and just keep staring and host a Sasmo serial instead of a news show. बांद्रा से ऐसी कौन सी ट्रेन है 4 बजने के बाद? It's like all news channels were reading out of a script handed over to them by Big Boss. बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि अगर ये सब घर जाने के लिए निकले थे तो इनके पास सामान क्यों नहीं था? अब ऐसा कैसे हो सकता है कि वो वहाँ पहुँचे लेकिन अपना सामान लेकर नहीं पहुँचे हैं? क्या लॉकडाउन में देश के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? मुंबई का बांद्रा स्टेशन हंगामा क्या इसी साजिश का नतीजा था? क्या बांद्रा की भीड़ को किसी साजिश के तहत इकट्ठा किया गया था? This is a conspiracy. There is a plot here. There is a definite design. आप भी पूछेंगे इतने लोग यहाँ कैसे पहुंचे? इन्हें किसने बुलाया? ये कौन थे? अगर इसके पीछे कोई साजिश थी, कोई प्लानिंग थी, तो इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? It's almost certain now that these individuals were coached into coming out there to violate the lockdown. Was this organic or was this organized? कौन उकसा रहा है और क्या षड्यंत्र है, क्या कॉन्स्पिरेसी है? No luggage in the hands of the migrant laborers. The station they came to have really hardly any trains going to Bihar and Uttar Pradesh. So where are they coming from? And what is the conspiracy? Isn't that the most basic question to ask at this point in time? The best bit was ABP News anchor sitting in Delhi and wondering, कौन कर रहा है ये साजिश? अब सवाल है कि ये भीड़ यहाँ क्यों आई और कौन इसे लाया? Meanwhile, the reporter has been arrested in Mumbai for reporting that trains have begun operating for migrants to go back home. It's being alleged by the Mumbai police that the crowd could have gathered outside the Bandra station because of such reports. We'll get back to this in a bit. Filhal, news anchors और साजिश. वो कॉन्स्पिरेसी ही क्या जिसमें हिंदू मुस्लिम ना हो. एंटर मस्जिद. मुंबई के बांद्रा में एक मस्जिद के सामने बहुत बड़ी संख्या में अचानक लोग एकत्रित हो गए. Okay, the migrants had not gathered outside the masjid. They had gathered outside the Bandra station. The masjid happened to be around the area. The masjid had a loudspeaker, so some of the community elders borrowed a mic from there to speak to people to ask them to go back home and not crowd. So मस्जिद के सामने लोगों को वापस जाने को बोला जा रहा था. This was clear as daylight if you watched the video of the man speaking in the loudspeaker. But not for News Nation. बताया जा रहा है
कि कुछ लोग भड़काऊ बातें कह रहे थे जो कि मस्जिद के भीतर से बातें निकल कर आ रही थी। हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं मस्जिद के भीतर कुछ लोग जो भीड़ के भीतर ही मौजूद थे वो किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। किस किस तरह की बातें कर रहे हैं? अगर आप अपनी स्क्रीन पर अब देखेंगे तो आप समझेंगे कि लोग दरअसल अल्लाह का नाम लेकर भीड़ को संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह का नाम लिया? क्या वो भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश कर रहे हैं या भीड़ को एकजुट करने की, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। ये कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम अकल से अंधे, दिमाग से पैदल ही नहीं, हम बहरे भी हैं। हमें ठीक से सुनाई भी नहीं देता। तो फिर अगर अल्लाह की तरफ से है तो हमारा काम क्या है? सिर्फ तकलीफ उठा के थोड़ा सा हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग रह के रास्ता निकालना है। हमको मालूम है माँ बाप उधर है, बाल बच्चे उधर है, सब है, लेकिन ये वक्त हर जगह पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। आज मस्जिद बंद करना पड़ी, चर्च बंद करना पड़ा, काबा मक्का शरीफ मक्का बंद, काबा की तरह हज नहीं होगा इस वक्त 1 साल, तो ये बड़ी बात नहीं है। The anchor himself then goes on to say this. तो हमने आपको दिखाया किस तरह से भीड़ को संबोधित किया जा रहा था, समझाने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार भीड़ एकत्रित न हो और दरअसल जो हो रहा है वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में हो रहा है। भांग खाई है क्या? You understood that the man speaking was trying to urge people to go back home to their residence. तो पहले क्यों नहीं बोला? News Nation wasn't the only one dropping the M word. Again, it was like all channels were reading out of a script handed over to them by Big Boss. सवाल ये भी है कि आखिर ये भीड़ मस्जिद के पास ही क्यों इकट्ठा हुई? क्या कुछ स्थानीय लोगों ने इन लोगों को भड़काने की कोशिश की? क्या किसी खास वर्ग से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इस भीड़ को भड़काया था? आप पूछेंगे इतने सारे लोग कैसे पहुंच गए? इनमें से ज्यादातर लोग पश्चिम बंगाल के मालदा के मजदूर हैं जो मुंबई में काम करते हैं। इन्हें व्हाट्सएप मैसेज भेजकर ये बताया गया था कि आज शाम 4 बजे जामा मस्जिद के सामने इकट्ठे होना है। कि मुंबई के बांद्रा में मस्जिद के पास किसने भीड़ जुटाई? लॉकडाउन में हर भीड़ मस्जिद के पास ही क्यों जुटती है? क्या मस्जिद से लोगों को जमा होने के लिए उकसाया गया है? बड़ा सवाल। क्या मुस्लिम नेताओं ने भाषण देकर लोगों को उकसाया और यहाँ भीड़ इकट्ठा की? लोगों की भीड़ के लिए क्या जामा मस्जिद जिम्मेदार? Meanwhile, Arnab Goswami went. You went for return, man. Never go for return. But who listens to Mr. Lazarus? Arnab spent 2 hours in Hindi and English saying कि ये लोग migrants ही नहीं हैं. They're not migrants. They're Lutyens lobby. Yeah, guys making a hard living in Mumbai from the poorest parts of UP, Bihar, and MP are apparently Lutyens lobby for Arnab. Just watch these insane ravings of a man who once upon a time did something called news. There are fake news channels today. There is one anchor who comes at 9 o'clock on a channel who's been doing a discussion on how migrant crisis, migrant problem. Let's talk to migrant experts about what's happening to the migrants. ये गड़बड़ क्यों हुई फिरोज कैमत जी? और ये गड़बड़ जामा मस्जिद के सामने क्यों हुई? ये हमेशा ऐसी गड़बड़ें क्यों होती रहती है? That this could have been a well orchestrated, well planned, manipulated effort to create. मुझे लग रहा है कई लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन के खलनायक हैं, जो विलेन हैं, जो चाहते हैं कि गड़बड़ हो, वो चाहते हैं हिंसा हो। जिया जी, आप इस पर खुलकर बोलते क्यों नहीं है? एक जमाने में खुलकर बोलते थे आप, आजकल हो क्या गया आपको? पूछता है भारत। बांद्रा स्टेशन पर जो हजारों लोग आए वो मजदूर नहीं थे। वो कौन थे? वो किराए पर बुलाए गए एक्टर थे। You know, you people with your fake narrative. I'm talking about Bandra in Mumbai. Chill. ये तफरी करने वाले नायक थे, जिसको दिल्ली की भाषा में बोला जाता है वेलापंदी। वेलापंदी यानी कि तफरी करने के लिए, जैसे लोग मेले पे जाते हैं ना घूमने, मौज करने, ये वेलापंती कर रहे थे, मौज कर रहे थे, मजे कर रहे थे। ये कोई मजदूर मजबूर नहीं थे। Like I said, Arnab's studio is in Mumbai. I mean, we're told that every night. From the Mumbai studios of Republic TV, it's time for Arnab Goswami on the debate. His office is like 20 minutes from where the migrant laborers had gathered. So, he could have very well replaced his shouting matches with a proper ground report instead of shitting on migrants. Arnab, you yourself are a migrant in Mumbai from Assam. थोड़ी sympathy ही कर लेते migrant से और irony से. कितनी बार irony को लात मारोगे? Anyway, what Arnab couldn't do, we'll do. News Laundry reporter Pratik Goyal was on the ground. You can read his story on our website newslaundry.com, and we have him here on TV News to answer some questions. Welcome Pratik. Pratik,
अर्नब गोस्वामी का ये कहना है कि ये लोग माइग्रेंट लेबर्स थे ही नहीं. यू वर देयर ऑन द ग्राउंड, सो प्लीज टेल अस सच क्या है. ये एरिया शास्त्री नगर स्लम का है और वहाँ पे बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स रहते हैं और जितने भी लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे सारी माइग्रेंट लेबर्स हैं. ये वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी और उड़ीसा के माइग्रेंट लेबर्स थे मैक्सिमम इसमें. और ये अधिकतर ये डेली वेज लेबरर्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं. तो वो जो बोल रहे हैं कि वो माइग्रेंट लेबर नहीं है तो वो बात बिल्कुल बेईमानी बात कर रहे हैं. मतलब झूठ बात है, वो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है. वो माइग्रेंट लेबरर्स ही है. ओके, तो ये भीड़ कल के दिन वो बोल देंगे कि इंडिया कैपिटल दिल्ली नहीं है तो वो मतलब थोड़ी ना मान दी जाएगी बात. ओके, तो अब आप हमें ये बताइए कि ये भीड़ बांद्रा स्टेशन के आगे कैसे इकट्ठा हुई और क्यों इकट्ठा हुई. देखिए, ये जो भीड़ है ये बांद्रा स्टेशन के उधर नहीं, ये बांद्रा बस डिपो है. ये वहां पे थे ये लोग. और ये जो इनका जो शास्त्री नगर का एरिया है ये बेसिकली वहां पे एक ओल्ड स्लॉटर हाउस कंपाउंड एक इलाका है, वो उसमें आता है ये. और ये बिल्कुल सटा हुआ है बांद्रा बस डिपो से. तो वहां पे ना ही कोई ऐसे बैरियर्स हैं ना ही कुछ. तो वो लोग वहां पे इकट्ठे होते चले गए. और मतलब किसी ने भी उनको किसी ने ऐसा बोला नहीं था कि आप मतलब कोई व्हाट्सएप मैसेज या कोई न्यूज रिपोर्ट या मतलब उसके जरिए वहां पे इकट्ठे नहीं होते. लेकिन ये बिल्कुल लगा हुआ है, इसलिए वहां पे वो लोग आते चले गए. और वो इसलिए कि भाई मतलब कुछ लोग का मतलब आपस में बातचीत वो कर रहे थे कि भाई सब इकट्ठा होंगे तो मतलब हमारी बात रख सकेंगे गाड़ी चालू करने की. तो वो वर्ड ऑफ माउथ ऐसा ऐसा घूमते 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 एक दूसरे के पीछे वो सब बहुत सारे लोग वहां पे आते चले गए. तो बेसिकली दे वांटेड टू गो होम. हाँ कि बोले. और वहां पे एक्चुअली वहां के जो ये जो डीसीपी वहां के जो हैं जोन नंबर 9 के, उन्होंने भी ये बात बताई है कि मतलब क्या हुआ था जब वो वहां पुलिस थी तो वहां पे करीबन मुश्किल से 100-150 लोग थे. तो वो उनके ग्रीवेंसेस सुनने लगे थे. तो जब उनसे वो उनकी बातें कर रहे थे तो उनको देख के और भी लोग वहां से जुड़ते चले गए, आते गए. एक उन्होंने बोला कि इसका ये एक एक्सपेक्ट ये भी है. और ये लोग बेहद परेशान इसलिए थे क्योंकि मतलब बहुत बुरी हालात में रहते हैं ये लोग. एक रूम में मतलब मुश्किल से 200-300 स्क्वायर फीट के रूम में 12-12, 10-10 लोग रह रहे हैं. टीन की मतलब चद्दर की छत है उनकी और गर्मी है बहुत ज्यादा. खाने पीने का इंतजाम, खाने पीने का देखिए कैसा है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई इंतजाम नहीं है वहां पे. वही जो एनजीओज हैं या सोशल वर्कर्स हैं वो उनको मतलब बेसिकली डेली एक उनको चावल का एक मतलब जो पुलाव बोल लीजिए या कुछ वेजिटेबल ये सब इस तरीके का हर रोज चावल ही मिलता है उनको. ओके. तो वो कभी कुछ लोग को 2 समय का मिलता है, कभी कभी कुछ लोग इलाके ऐसे हैं जहाँ पे एक ही बार मिलता है शाम को. ओके, मस्जिद का क्या एंगल है. बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें न्यूज एंकर्स बोल रहे हैं कि भीड़ मस्जिद के बाहर हुई और शायद मस्जिद से उनको उकसाया गया. मतलब बहुत ही निहायती बकवास बात है ये. मस्जिद का एंगल उसमें ये है कि बांद्रा बस डिपो से ही लग के वो मस्जिद है. अब हुआ ये था जब वहां पे इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई तो पुलिस की जो गाड़ियों के पास और जो उनके मेगाफोन्स होते हैं उनसे वो अपनी बात उनको पहुंचा नहीं पा रहे थे. मतलब उनकी आवाज नहीं जा रही थी. तो उन्होंने मस्जिद में रिक्वेस्ट किया कि हम मस्जिद से अनाउंसमेंट करेंगे. और फिर मस्जिद से वहां के जो एडिशनल सीपी थे मनोज शर्मा, उन्होंने अनाउंसमेंट किया. वहां के डीसीपी थे उन्होंने अनाउंसमेंट किया. वहां के जो इमाम थे उनसे भी उन्होंने अनाउंसमेंट करवाया कि भाई आप लोग इस तरीके से ऐसे इकट्ठे मत हुई, ये बीमारी बहुत खतरनाक है. ओके. और जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सूटकेसेस नहीं, उनके हाथ में सामान नहीं था, सूटकेस नहीं था, वो इसलिए था क्योंकि वो लोग घर वापस नहीं जा रहे थे. वो लोग वहां इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि वो अपनी बात बताना चाह रहे थे अथॉरिटीज को. तो इस वजह से उनके पास सवाल ही नहीं उठता कि उनके हाथ में सूटकेस होगा या उनके हाथ में बैग होगा. वो जा ही नहीं रहे थे घर पे. और लास्ट क्वेश्चन जो हम आपसे पूछना चाहते हैं वो ये है, एबीपी न्यूज का एंगल. एबीपी के एक रिपोर्टर को अरेस्ट कर दिया है. तो ये हमें बताइए कि एबीपी के रिपोर्टर ने क्या बोला और कितना हम उनको ब्लेम करना सही रहेगा नहीं रहेगा. उनके अगेंस्ट एफआईआर के बारे में आप बता दीजिए. देखिए, एबीपी ने जो ये न्यूज की थी मतलब उनका कहना है कि भाई ये मतलब 14 तारीख को 9 बजे उन्होंने उनका वो जो मतलब ये उनके न्यूज चैनल पे ये ब्रॉडकास्ट हुआ था ये न्यूज. तो उसमें एंकर बोल रहे हैं कि भाई इस तरीके से अब ये जो स्टैंडर्ड लेबरर्स हैं इनको घर पहुंचाने के लिए ट्रेन शुरू हो जाएंगी. उसके बाद वो रिपोर्टर से बात करती है. तो रिपोर्टर एक डॉक्यूमेंट है जो साउथ सेंट्रल रेलवे का है, उसके बेसिस पे वो बताते हैं कि जो एक प्रपोजल है और उसको उसके हिसाब से इस तरीके की स्पेशल ट्रेन, जनसाधारण स्पेशल ट्रेन शुरू करने की बात है उस प्रपोजल में. तो उसके बेसिस पे वो रिपोर्ट करते हैं. तो इसमें इसके बेसिस पे बता रहे हैं. तो वो जो एंकर है वो जिस तरीके से बात कह रहे हैं कि मतलब वो ट्रेन शुरू हो जाएंगी, वो थोड़ा मिसलीडिंग लगता है. लेकिन वो जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे रिपोर्ट कर रहे हैं
तो वो उन्होंने वही रिपोर्ट किया है उस पे। रही बात ये 9 बजे की, लेकिन एबीपी गलती वहां करता है कि मतलब उन्होंने क्या किया, करीबन 11:23 पे यही रिपोर्ट को ऑनलाइन पब्लिश कर दिया, जबकि 10 बजे तो ऑलरेडी लॉकडाउन अनाउंस हो गया। मतलब जब पीएम ने स्पीच दी थी तो उन्होंने बोल दिया था कि भाई 3 मई तक लॉकडाउन रहने वाला है। So there's a bit of an editorial miscalculation here, but what Prateek is trying to tell us is that you can't entirely blame the reporter because he was speaking from an internal circular. Thank you, Prateek, so much for talking to us. If you want to know the full details of Prateek's story, so log on to newslaundry.com, read it in English. We'll also translate it in Hindi, and that will be up on the website in some time, so you can read it on both English and Hindi. Thank you, Prateek, so much for your work. See what Republic TV couldn't do, we did. तो क्या हुआ अगर उनके पास मोदी जी का साथ है, बीजेपी का साथ है? Yeah, this guy who's with the BJP is one of the investors in Republic. Not just him, Arnab even has big brands like Powered by General Air Conditioners and Century Ply. मनीषा, अपने पास क्या है यार? हमारे पास आप हैं. No, not this app. App, you guys, news subscribers. People who pay to keep news free so that we can get you news and not natak, and so that we can make all the fun of all the natak that pretends to be news. So, come on guys, subscribe to newslaundry.com. If you like what I do, and if you like what journalists like Prateek do, then don't forget to subscribe to newslaundry.com so that we can bring you more news and we can do more dhulai of news. That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next week. Till then, stay mad, that's the only way. Thank you everyone for watching this episode. If you liked it, don't forget to like our YouTube channel. It's very important. Please like our YouTube channel and please send this video to your friends, families, lovers, girlfriend, boyfriends, dada dadis, everyone in your family, and make them watch it. And after making them watch it, please ask them to like our video and subscribe to our YouTube channel. Please subscribe to our YouTube channel. We really need the numbers. Thank you.